Okay, this is a 90 question. 90 or 98? both हैं सर, दोनों ही हैं. Okay, so in question number 90, what you have to do, here its question is given that the function y is equal to 0.03 x square plus 245.5, where x is in between 0 and 100. This function is, this value of y is approximates the exhaust temperature in y degree Fahrenheit, where x is the percent load for the diesel engine. Okay, find the inverse in a part. Find the inverse function and what does each variable represent in the inverse function. So, is question is clear to you all first of all? Hello. Yes, sir. Yes sir. What question is asking? Yes, sir. First, find the inverse. Okay, first of all, you have to find inverse and what does x and y represent here? What is x and what is y? Sir, X represents load for a diesel percent load for a diesel engine, and Y represents the temperature in Fahrenheit. Temperature and Fahrenheit. So whenever or whatever you have to put x as a load, you will get a temperature of any machine. Clear? Okay, so you had first of all determine the its inverse. So I'm writing here. You had to tell me function. Okay, what is y here? 0.03 x square 0.03 x square plus 245.5 okay. X First of all, is you have between- to yes. First of all, you have to tell whether this function is one-to-one or not. Means inverse is possible or not. Is a general. This is a quadratic, so that's why this is not one-one. But the domain is restricted, so x is in between. I think 0 to 0 100. to 100. Clear? Yes, sir. So now with this domain, I think the function will be 1, 1. 1, 1. Yes, sir. Okay. So, okay, tell me what is first step in order to determine the inverse function. You have to follow 3 steps, I think. Clear? So, what was first step? And first step is you have to replace f of x with y, but it's already done. So, what is now second step? As you know that for inverse, you have to interchange x and y, clear, with each other. So x will be now treated as a y, y will be treated as a x. For inverse, as you know that the domain will be range and range will be treated as the domain. So this equation now will equal to x equal to 0.03 x square plus 245.5. Am I right? Sorry, this is y. Is it clear up there? Yes, sir. So the next step is you have to solve for y. So 0.03 y square equal to x minus 245.5. So what is y square here? Okay, what will be y here? In general, this will become plus minus. Yes, sir. Plus minus radical X minus 245.5 divided by 0. Okay, before writing here
y is f of x, you have to tell which sign will be occur, either plus or minus y, because in general if I'm giving these two signs, that will not be a function. Why? Because there is a restriction in function. For function, each and every domain we have a unique outcome, so that's why we have to choose now either plus or minus. So how you can choose one sign from these two signs? You have to see, as you know, that there is a relation between the domain and range of function and its inverse. So first of all, you have to see original function. If I ask you what is the range of this function, or that range will be in fact the domain of our inverse function. Clear? Are you getting or not? Sir, kindly, And just and signal as you problem है, know उर्दू में that बता दो. domain of this function is from 0 to 100, so this will become now range. Clear? So okay, tell me first of all range of this function. So range will become from 0 to 100. So here I am writing मैं कि थोड़ी ज़्यादा बढ़ाऊँ. range of f inverse. Clear? Will be from 0 to 100. Am I right? Yes, sir. So here you can see that this range is positive, means there isn't any negative number. Clear? So now that will be easy for you. Why? Because we need a positive range. Clear? So if I select a positive sign from this equation, that will define our original range. But if I will select negative, and then the range of this inverse function cannot be positive. So from this thing, okay, from this range, we have to choose now positive value of y. Clear? So at the end, y will become now, that will be f inverse of x. So this y will equal to positive sign only, means we have to ignore in fact negative. X minus 2045.54. Okay, here you can write now domain. What will be domain of this inverse function? This. Okay, for domain, you have to make this x minus 245.5 positive, or the best way is you have to see the range of this function. So the range of this function will be domain of this inverse. So what will be range now? If we put 0, what we will get? You will get 245.5, but we cannot put 0, so our range, okay, I'm writing here, range will become, if I'm putting 0 here, you will get 245.5, okay, but that number will be not included in our range. Okay, the largest number is 100. Clear? So if I put 100 here, so what will you get? है ना calculator आप लोगों के पास? Use your calculator and determine what will be f of 100, y of 100. Are you getting or not? Hello? Yes, कहाँ चलेगा? 545.5. Sir, 545.5. सर कैलकुलेट कर रहे थे ना. 540? ये number है? Yes, sir. So now this
245.5 to 545 will be domain of this function. Okay? So domain of F inverse. $545.5 clear. So this is our domain. Is it clear up here? Yes, sir. Okay, now what is this function telling? What is f of x means? If f of x is your y, then what is value of y, or what is x will represent here in this function? So this a part has two questions. One is you have to determine inverse that you already determined. So this is the first part of question, and the second part of question is asking you have to interpret variables. Clear? What does each variable represent in the inverse function? So inverse function में x और y किस चीज को represent करती है? यहाँ पर तो आपने बताया कि आप x जो है ना वो लोड है, y टेम्परेचर है, तो मगर इनवर्स में क्या हम लिखेंगे? x क्या है, y क्या है? तब इसका अपोजिट होगा। हाँ बताएं क्या होगा? इस सर में एफ ऑफ अब एक्स की जो डोमेन इसकी होगी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये x और y का मतलब इनवर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो x क्या है, y क्या है इस फंक्शन में? सर ये इस फंक्शन में जो y है ना वो लोड है और x टेम्परेचर। अब ये रिवर्स है, आप लोग उन ओरिजिनल फंक्शन के वेरिएबल्स को उलट करेंगे। वहां पर जो x आपका लोड था, मगर यहाँ पर क्योंकि इनवर्स से हमने क्या किया था, x की जगह y को और y की जगह x को रिप्रेजेंट किया है, तो नाउ दिस फंक्शन विल टोटली गिव यू inverse in terms of variables also. Clear? So here if you were to see from this question, whenever you will put x as a load, you will get y as a temperature. But now for inverse, you will get temperature, and against temperature you will get load. Clear? So x is your now temperature, ठीक है, और y जो है ना वो आपका क्या है, लोड हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आप अब टेम्परेचर के हिसाब से लोड को डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। इससे पहले आपको बताया जो फंक्शन था उसमें आप लोड पुट कर रहे थे, तो लोड के अगेंस्ट आपको टेम्परेचर मिल रहा था, मगर इनवर्स में आप लोग रिवर्स करेंगे। आप लोग अगर टेम्परेचर वहां लिमिट तक रखना चाहते हो और लोड मालूम करना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज इनवर्स फंक्शन। Okay, B में कहता है use the graph utility to graph the inverse. You may use Desmos here, or this is a qualitative. You may also determine graph by hand. Clear? Okay, what is C part? The exhaust temperature of the engine must not exceed 500 degree Fahrenheit. What is the person load interval? तो ये मैक्सिमम जो है ना आपको बताया टेम्परेचर गिवन है। अब ये बताएं किसमें पुट करेंगे हम, ताकि टेम्परेचर गिवन है और पर्सन लोड चाहिए। यस, सी ये फंक्शन यूज करेंगे या इनवर्स फंक्शन यूज करेंगे सी पार्ट के लिए? हमें 500 किस में पुट करेंगे, करना चाहिए? सर इनवर्स में। इनवर्स में आप लोग यहाँ पर 500 पुट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी आपके पास वहां तक आप लोग रेंज रखेंगे। बहरहाल ये दोनों पार्ट हो जाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 98। सर इनवर्स में क्यों पुट कर रहे हैं? ये इनवर्स में क्यों पुट करें, इस फंक्शन में क्यों नहीं पुट करें? सर क्योंकि हमें टेम्परेचर मिला हुआ है और हमें लोड चाहिए, उसके लिए अगर अच्छा देखें यहाँ पर इनवर्स में देखें तो x टेम्परेचर है ना, तो x टेम्परेचर आपको गिवन है 500 था आई थिंक। मतलब सी पार्ट में आप लोग क्या करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ 500 था 5000 500 सर 500 इसमें पुट डिग्री। करेंगे, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है? अदरवाइज आप चाहें तो इसमें y की जगह 500 पुट करेंगे, मगर फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा और दोबारा से हर चीज करनी पड़ेगी। मगर क्योंकि हमने ये तमाम चीजें ना यहाँ पर कर चुके हैं, तो अब ये डायरेक्ट वैल्यू आपको इनवर्स देगा। जैसे आप 500 पुट करेंगे, यू विल गेट लोड।
ठीक है। तो ये सही है इनवर्स का सर। फायदा है कि हम रिवर्स चीजें इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब ये इसी फंक्शन से भी हो जाएगा मगर फिर लेंथी हो जाएगा यूजली, पर इनवर्स क्योंकि ऑलरेडी हमने किया हुआ है तो आपने इनवर्स यूज करना है, आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। सो व्हाट इज इन सही है 98? सर, अगर वैसे करेंगे तो हो जाएगा ना? हाँ वैसे करें तो हो जाएगा। सही है सर। 98 करना है, ये हमने करना है। सर यस सर जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो सर उसमें हम उसका इनवर्स फंक्शन चेक करने के लिए 2-3 मेथड होते हैं कि ग्राफिकली चेक करेंगे और अलजेब्रिकली चेक करेंगे। तो सर अक्सर मैं क्वेश्चन जब करने लगा था तो ग्राफिकली वो प्रूव हो जाता था कि वो इनवर्स है, और जब अलजेब्रिकली करते हैं तो वो अक्सर यानी कि सर उसमें डिफिकल्टी हो जाती है कि अच्छा, अलजेब्रिकली वो होता है। अल्जेब्रिकली इजी है। पता है कैसे करते हैं आप लोग? आप लोगों ने ऑलरेडी कंपोजिट फंक्शन पढ़े थे, ठीक है? यस सर। तो कंपोजिट फंक्शन में आप लोग आइडेंटिटी सर सर यानी कि माइक देखिए को थोड़ा मतलब पास करें माइक। माइक, अच्छा चलिए मैं माइक निकालता हूँ, डायरेक्ट जो है ना लैपटॉप को यूज करता हूँ। अब ठीक है आवाज? यस सर। यस सर, अब सही है। हेलो सर। सर भी कह ओके, रहे इज इट हैं। क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। एम आई ऑडिबल? यस सर सर। हेलो? अभी सर सर को आवाज नहीं आ रही, सर। अभी सर यस को आवाज नहीं सर। आ रही। सर आप माइक लगा लें सर। ठीक है, हमारा काम चल जाएगा। हेलो? कोई मैसेज कर दो सर को, कैसे पता चलेगा? भाई आपने सर की एंट्री निकलवा दी। सर को आवाज नहीं जा रही। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी यस यस सर। सर। यस सर, आवाज आ रही है। चलें, ओके सुने, ये दिस इज एफ ऑफ एक्स और कोई दूसरा हम इसका इन्वर्स कर लेते हैं, ठीक है? आपको पता है, लेट सपोज मैं लिखता हूँ एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, देन कैन यू टेल व्हाट विल बिकम एफ इनवर्स ऑफ बी? ए आएगा ना, ठीक है? यस सर। ओके, तो ये फंक्शन का अगर ऑर्डर पेयर होगा तो इसके इनवर्स का ऑर्डर पेयर हो जाना है, जस्ट रिवर्स करेंगे, ठीक है? ओके, अब देखें, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ एफ कंपोजिट एफ इनवर्स, और ये किसी खास पॉइंट पर मैं करने जा रहा हूँ, मैं बी पर करने जा रहा हूँ, ठीक है? लेट सपोज बी पर मैं करना चाहता हूँ। तो ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ बी, ऐसे ही होगा ना? और आपको पता है एफ इनवर्स बी की वैल्यू आपको पता है क्या है? ए। ए, तो इसके अंदर क्या आएगा, मतलब ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? ए, क्लियर? और ये एफ ऑफ ए आपको पता है, ये एफ ऑफ ए की फिर किसके बराबर है? बी के बराबर है ना? यस सर, ये बी के बराबर है। अब देखें, इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ, इन जनरल, क्लियर? आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बी पुट किया है तो क्या मिला हमें? बी। और वैसे ही अगर आप एफ कंपोजिट एफ इनवर्स में जो भी पुट करेंगे उसका सेम आउटकम आएगा, ठीक है? दूसरा बी पुट किया तो बी आया, अब मैं एक्स पुट करूंगा तो क्या आउटकम आना चाहिए? एक्स आएगा ना? ये सर आर इज गेटिंग? यस सर। या मैं दोबारा रिपीट करूं इसे? अगर मैं यस सर, ये तो पॉइंट किसी ने पूछा ही नहीं है सर। एक मिनट में वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मगर दिस टाइम मैं एफ इनवर्स पहले लिखता हूँ, कंपोजिट एफ बाद में लिखता हूँ, ठीक है? और फिर मैं लिखता हूँ, इसमें पुट करता हूँ लेट्स सपोज ए, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये हो जाएगा एफ इनवर्स एफ ऑफ ए आएगा ना? और एफ ऑफ ए की वैल्यू आपको पता है, वो किसके बराबर है? बी। बी। और एफ इनवर्स बी का भी आपको पता है, वो किसके बराबर है? ए। है। तो अब देखिए, जो हमने इनपुट किया है
वही आउटकम आ रहा है, ठीक है, सेम इनपुट सेम आउटकम। तो इन जनरल ये फिर किसके बराबर होगा, मतलब हम ये कहेंगे कि एफ इनवर्स एफ में अगर आप एक्स पुट करेंगे यू विल गेट एक्स, so this is same आइडेंटिटी फंक्शन। f composite f inverse of x, clear? So in general, why? Because f composite g are not equal, but here in this case f composite f inverse or f inverse composite f will always equal, and that will always equal to x function, identity function. So this is in fact method of calculating algebraically. If two functions are given to you, let's suppose f of x and g of x, clear? So how you can determine whether these two functions are inverse with each other? You have to determine their composite and check for identity. If f composite g and g composite f is equal to x, then means I'm writing if this thing happens, then you have to say f and g are inverse functions with each other. Is it clear to here? Sir? This algebraically is easy as compared to graphically. Yes. कुछ बंदे दरवाजे पे खड़े हैं सर, इनको अंदर आने की इजाजत चाहिए। हाँ, इनको मैंने इन किया है अभी। तो मुझे बताएं, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था 98। देखें व्हाट इज एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, अगर आप टेन पुट करते हैं 7, अब फंक्शन चाहे जो भी हो, फंक्शन है लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एंड एफ इनवर्स इज एक्स माइनस 2, क्लियर? ये कहता है इवेल्युएट करें आप लोग इस चीज को, इस चीज को, और उसमें आप करेंगे। मगर अभी आपने कॉन्सेप्चुअली देखा तो मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं व्हाट विल बिकम एफ इनवर्स ऑफ एक्स हियर, व्हाट शुड आई राइट हियर? सर 10 ही -10 होगा। -10 -10 व्हाट bottom अबाउट हियर? -10 -10 व्हाट अबाउट हियर? 0 0 7 7 45 45। अगर आप चेक करना चाहें तो ये कंप्लीट आपको करना पड़ेगा, मगर अभी आपने कॉन्सेप्चुअली देखा कि जो भी इनपुट करेंगे सेम आउटकम आएगा। तो आप लोग चाहें तो इसको डिटरमाइन करने के बाद पुट करें। सर मेरा क्वेश्चन सही क्लियर नहीं हुआ मुझे सर, एक कौन चीज सा रह गई है। कौन सा? सर मैंने ये पूछा था कि अक्सर क्वेश्चन जो होते हैं वो अलजेब्रिकली जो होते हैं वो इन्वर्स होते हैं, लेकिन वो ग्राफिकली नहीं होते वही क्वेश्चन, तो उसमें सर कंफ्यूजन होती है। मतलब ग्राफिकली किस तरह इन्वर्स होते हैं, मैं समझा नहीं सर क्वेश्चन। बिलफर्ज अगर कोई फंक्शन है ना x² + 1 है, तो सर वो ग्राफिकली 1 1 फंक्शन नहीं होगा, लेकिन उसका इन्वर्स फंक्शन बन जाता है अलजेब्रिकली। नहीं, इनवर्स फंक्शन आप मुझे बताएं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर्स में आप लोगों ने पढ़े थे ना। मैं अगर आपसे ये कहूं कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, तो आप कहेंगे 1/2। व्हाई? बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ 2 and 1/2 is 1, multiplicative identity, clear? In the same way, if I ask what is multiplicative inverse of 3 or 4, then you have to tell any real number. For that their product should equal to 1. So what will become multiplicative inverse of 3/4? You have to say 4/3, clear? Am I right? In the same way, now if I ask you what is multiplicative inverse of 0, means कौन सा नंबर है जिसको मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ जाए, तो आप कहेंगे there is no multiplicative inverse of 0, clear? तो हर रियल नंबर का जिस तरह इनवर्स नहीं होता, वैसे ही हर फंक्शन का इनवर्स नहीं होता। अगर आप ये कहेंगे व्हाट दिस इज फंक्शन इन फैक्ट, क्लियर, बट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो जिस तरह आपने 0 के लिए कहा नो इनवर्स, इसके लिए आप सिंपली कहेंगे नो इनवर्स, क्लियर? तो नो इनवर्स क्योंकि ये 1 1 नहीं है। अगर 1 1 होता तो हम इसका इनवर्स डिटरमाइन करते, ठीक है? सर अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग जाए तो फिर तो उसका इन्वर्स हो सकता है ना? हाँ, अब जब तक क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है तब तक तो हम एज अ होल रियल नंबर कंसीडर। अब डोमेन का पता नहीं तो हम अज्यूम करते हैं कि ऑल रियल नंबर इज डोमेन है। हाँ, अगर रिस्ट्रिक्शन होगी तो वो बताया जाएगा कि x इज फ्रॉम हियर हियर और x इज ग्रेटर देन समथिंग और इन बिटवीन समथिंग, सही है सर। ठीक है? तो अब इसमें क्या मसला है? सर अगर इसको हम
अलजेब्रिकली सॉल्व करें इसको y के इक्वल वो जो सारे स्टेप हैं रिप्लेस कर दें सर उसको अच्छा एफ ऑफ इनवर्स वो तो नहीं, वो तो आप बाद में करेंगे जब आपको पता है कि क्या, जब आपको पता हो कि 1 1 है तभी आप करेंगे ना। वो पहला स्टेप आपको याद होगा, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू चेक कि वेदर इट इज 1 1 और नॉट। अगर ये चेक होता है तो देन यू हैव टू मूव फॉर सेकंड थर्ड स्टेप, अदरवाइज नहीं। और अगर आप चेक किए बगैर भी करेंगे तो आप लोग यहाँ तक आके फंस जाएंगे, y विल बिकम प्लस माइनस सम रेडिकल, इस तरह कोई क्वांटिटी आएगी। तो आप मुझे बताएं, अगर मैं इसको लिखूं लेट्स सपोज एफ इनवर्स इक्वल टू प्लस माइनस, तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं नेवर बी फंक्शन y। बिकॉज सर एक डोमेन के सेम रेंज नहीं हो सकती। मगर यहाँ पर आप प्लस माइनस का मतलब अगर आप कोई पुट करेंगे a, तो इसमें b एक पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव b आ रहा है, तो मुझे बताएं क्या ये फंक्शन है? दिस इज नॉट, दिस इज ओनली रिलेशन। तो इस चीज से बचने के लिए ना, आपको पता है कि आप पहला स्टेप करते हैं, मतलब चेक करते हैं क्या 1 1 है, तो आप सेकंड थर्ड स्टेप करते हैं। अगर पहला नहीं तो फिर आप करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन किया था 90, उसमें भी इसी तरह की आई थी, तो हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्शन करके ना जस्ट प्लस वाली साइन को चूज किया था, और समटाइम हम माइनस वाली साइन को चूज करते हैं। So that will depend on your restriction on क्वेश्चन नंबर 101 को भी थोड़ा देखने दो। 101 को। यस सर। 101 को तो हमने किया था नहीं? ये कहता है चेक करें, डिटरमाइन वेदर द सिचुएशन कैन रिप्रेजेंट 1 1 फंक्शन, इफ सो राइट अ स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब द इनवर्स फंक्शन। तो ये कहता है ये सिचुएशन देखें क्या 1 1 हो सकती है। तो सिचुएशन इस तरह है, द नंबर ऑफ माइल्स एंड ऑफ मराठा runner has completed in terms of times t hours। तो इमेजिन करें आपके पास डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और 1 1 सिचुएशन में बेहतर होगा आप लोग ये वाले ऑर्डर पेयर में देखें। ओके, क्या है नंबर ऑफ माइल्स और वर्सेस टाइम टी है। एक कोई रनर है, फॉर एग्जांपल उसको आप लोग रन पर कर रहे हैं और माइल है लेट सपोज m1, या अगर मैं नंबर लूँ तो इजी हो जाएगा। लेट सपोज 10 माइल आप लोग कोई एक रनर दौड़ रहा है, या कोई 20 माइल दौड़ रहा है, और ये लेट सपोज 30 माइल करें। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, इन जनरल आप लोग ले सकते हैं ए बी सी, और दीज आर इन फैक्ट माइल्स। क्लियर? तो आप लोग कैसे पता चले 1 1? अगर ए बी सी का डिफरेंट नंबर आ जाए तो आप कहेंगे कि दिस इज 1 1। अगर सेम आ जाए तो फिर आप कहेंगे कि दैट विल बी नॉट 1 1। तो मुझे बताएं, अच्छा ये कहता है कंप्लीट, तो इनका डिफरेंट टाइम होगा या सेम टाइम होगा? अगर वो बंदा रुकता नहीं, फिर फॉर एग्जांपल आगे चलकर रुक जाए, तो फिर तो टाइम सेम लगेगा, मगर वो कंप्लीट करता है ये वाली रेस। इसमें आपको पता है ना, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको कंप्लीट करना होता है विद इन इंटरवल। तो मुझे बताएं 20 माइल्स अगर कोई बंदा खास स्पीड से दौड़ता है तो उसका टाइम, और 30 माइल उसी स्पीड से दौड़ता है तो उसका टाइम, और 40 माइल्स उसका टाइम सेम होगा या डिफरेंट होगा? मतलब यार इस तरह सिचुएशन बनेगी, या फिर इस तरह बनेगी, या इस तरह बनेगी? मतलब अगर इस तरह बन रही है तो आप कहेंगे, डिफरेंट होगा। अगर इस तरह डिफरेंट है तो आप कहेंगे कि दैट विल बी 1 1। आर यू गेटिंग इट? तो अगर टाइम सेम हो यस सर। और डिस्टेंस कवर करता है बंदा सर स्पीड रिपीट के करें, लिए, समझ नहीं आया। सर अगर टाइम एक हो लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट हो तो सर वो 1 1 फंक्शन हो तो सकता है। नहीं नहीं, वो 1 1 कैसे होगा? यानी कि वो इस तरह यहाँ पर चले, मैं लिखता हूँ इस सर डोमेन तो डिफरेंट है ना, रेंज तो एक हो सकती है सर। अच्छा मुझे बताएं, हमने किया था ना इस स्टार्टिंग में, जब इनवर्स फंक्शन की मैंने बात की थी तो मैंने इस तरह लिखा था ए बी सी, और यहाँ पर डी लिखा था, तो मैंने कहा था इज इट अ फंक्शन? ये फंक्शन है ना? तो आपने कहा यस था सर। ये फंक्शन है, मगर जब मैं इनवर्स की बात करूंगा तो ये इस तरह होगा, डोमेन रेंज में चली जाएगी,
और रेंज फिर डोमेन। तो ये इनफैक्ट इस तरह है A B C। सो इज इट ये तो नहीं होगा इनवर्स। ये नहीं होगा ना, ये इनवर्स क्यों यस नहीं? सर। Yes, sir. क्योंकि दिस इज नॉट इनफैक्ट 1 1 क्लियर, नॉट 1 ऐसे ही था Yes, ना। sir. यस तो इस वजह से हमने इसकी फंक्शन इनवर्स को हम डिस्कस ही नहीं करेंगे क्योंकि ये फंक्शन इनवर्स नहीं, ठीक है। तो अब आप इस तरह देखें इस ऑर्डर पेयर से, अगर इस तरह की हो तो आप कहेंगे नॉट 1 1, और अगर इस तरह हो, A का यूनिक आउटकम हो B, C का यूनिक आउटकम हो D, E का लेट्स सपोज A, सो दिस 1 1 करेस्पॉन्डिंग आपको पता है क्या होता है? मतलब एक Sir, के सामने एक हो। एक आप लोग देखें पुरानी जंगों में देखा करते होंगे मूवीज में, तो लेट सपोज एक बंदा आता है एक पार्टी से, ठीक है, आगे, तो उसके सामने बहुत सारी यहाँ पर आर्मी मतलब कोई बंदे खड़े हैं, ठीक है, और ये भी मतलब कोई बंदों का लश्कर है, ठीक है। ये बंदा यहाँ से आया है, तो अब बी से भी कितने बंदे जाएंगे? एक बंदा जाएगा। सो दिस एग्जांपल ऑफ 1 1, ठीक है। तो डोमेन का भी एक, रेंज का भी एक, इसको भी कहते हैं 1 1। अगर एक से ज्यादा आ गया तो वो 1 1 नहीं कहलाएगा। तो अब मुझे बताएं इस जो प्रॉब्लम में 101 में सिचुएशन है वो किस तरह की है? 1 1 वाली आपको नजर आ रही है या 1 1 वाली नजर नहीं आ रही? अच्छा, आप situation. अपने आप को कंपेयर कंसीडर करें। लेट्स आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, और कोई मतलब बड़ी रेस है जिसमें हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मोर देन 100 माइल्स की हम बात करें, भले आप टाइम जितने भी दिन लगे, ठीक है, आप स्पीड मेंटेन करते हो और आपसे ये कहा जाता है कि लेट्स सपोज आप 10 माइल दौड़ें और फिर 20 माइल दौड़ें और 30 माइल दौड़ें, ठीक है। तो इन तीनों का टाइम बताएं, सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? जो भी है, हम टाइम पर्टिकुलर वो डिपेंड करेगा हर एक बंदे की स्पीड के ऊपर, मगर टाइम जो भी हो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा या सेम होगा? यानी कि ये सिचुएशन इस तरह बनेगी, ये मैं लिखता हूँ माइल्स और ये मैं लिखता हूँ टाइम, ठीक है। ये होगा तो आपने कहना है कि दिस इज 1 1। और अगर मैं आपसे ये भी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर या तो आप इस तरह कर लें 10 20 30, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैं वैसे ही रफली आपको बता रहा हूँ कि लेट सपोज अगर आप कहते हैं कि आपका टाइम इस तरह, तो मुझे बताएं ये वाली ऊपर वाली सिचुएशन होगी या नीचे वाली सिचुएशन? ऊपर वाली सर। ऊपर वाली में इनवर्स होगा सर। आंसर फिर होगा 1 1 होगा, तो इसका इनवर्स डिपेंड करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर अच्छा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो बताएं क्या चीज देगा वो फंक्शन आपको? टाइम के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस देगा, ठीक है। जिस तरह अभी हमने पहले किया था एक क्वेश्चन जिसमें डोमेन को रेंज, रेंज को डोमेन को हमने एक्सचेंज किया था, तो यहाँ पर अगर फंक्शन आपको डिस्टेंस पुट करने से टाइम देता है तो इनवर्स आप क्या होगा, वो आपको टाइम देगा अगेंस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, दैट इज मैथमेटिकली मॉडलिंग एंड वेरिएशंस। हमने किया था प्रीवियस क्लास में डिस्कस को थोड़ा बहुत, नहीं? नो सर सर डिस्कस नहीं किया था सर। नो सर So what is in fact mathematical modeling? If you have actual data or practical data, then you are interested in order to construct any function or any model that can represent your data. For example, if we have year and population, clear, then these are data are exact. Practically you can determine, but uh, if we are able to write any mathematical model that can represent these ordered pairs, then this equation or function will be known as a model. और ये अगर लीनियर है तो हम इसको लीनियर मॉडल कहेंगे, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक मॉडल कहेंगे। तो मॉडल जिस तरह आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में वर्ड प्रॉब्लम होता है, एप्लीकेशन होती है, तो वो सिचुएशन को आप लोग मॉडलिंग करते हो, यानी कि उसके अगेंस्ट आप लोग कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन लिखते हो, तो वो हमारा मॉडल कहलाता है। तो अब हम उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम नहीं करेंगे, और फिर हम वेरिएशन करके ना। अब देखिए आप लोगों ने इससे पहले स्कैटर डायग्राम पढ़ा था, ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्कैटर डायग्राम किस तरह होता है,
x और ये y for example. So if I am writing here for example some scatter diagram clear, or now if I ask you only linear, इस एक्सरसाइज में हम जस्ट लीनियर को डिस्कस करेंगे, लीनियर मॉडल, ठीक है। वैसे बहुत सारे मॉडल हैं, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो मगर इन दिस एक्सरसाइज आवर डोमेन इज ओनली लीनियर मॉडल. Okay, if I ask you, can I construct a straight line? Why? Because the graph of linear model will be straight line. Can I construct a straight line that can pass through all these points? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन होगी जो सबसे पॉइंट ज्यादा सर नहीं होगा. नहीं होगा. तो we cannot construct a straight line that can pass through all point. अगर मैं बना भी लूँ तो let's suppose चंद पॉइंट्स को ना क्रॉस करे, बाकियों को मिस करेगी, और अगर सबसे करूंगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एप्रोक्सीमेट करेंगे ऐसी लाइन जिनका डिस्टेंस या जिनका डिफरेंस, जिसको मिरर कहते हैं, वो कम से कम हो, ठीक है। तो उसके पीछे एक मेथड है जिसको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड हम कहते हैं इसको, ठीक है। तो वो क्या करता है, लीस्ट मींस कम से कम, स्क्वायर मतलब ये क्या करता है, एरर का स्क्वायर जो है ना वो मिनिमाइज करता है, ठीक है। तो बहरहाल हम इस मेथड के डिटेल में नहीं जाएंगे स्टेटिस्टिक्स में, और आगे आप लोग जो है ना इस चीज़ को पढ़ेंगे कि कैसे हम करेंगे, मगर मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि किस तरह हम इसको यूज आउट करेंगे, ठीक है। तो इसका बड़ा फार्मूला है, हम उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट हम क्या करेंगे इसको यूज करेंगे, किस तरह यूज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको डिग्री ऑफ मॉडल बताता है, जिस आर होता है, और आर की वैल्यू जो है ना वो होती है इन बिटवीन लेट्स सपोज -1 to 1, ठीक है। और हम ये अज्यूम करते हैं अगर आर 1 के करीब है तो हम कहते हैं कि मॉडल इज बेस्ट फिटेड, अगर 0 के बराबर आ जाता है, 0 के करीब आ जाता है तो हम कहते हैं वीक मॉडल है, ठीक है। और पॉजिटिव रिलेशन, और अगर नेगेटिव में नेगेटिव आर के बराबर तो आपको पता है कि वो, यानी कि अगर मैं इस तरह पॉइंट डिटरमाइन करता हूँ तो नाउ देयर इज नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। स्लोप नेगेटिव आएगा ना इसका, तो अगर -1 के करीब है तो बेस्ट नेगेटिव रिलेटेड, और 0 के करीब है तो अगेन नो रिलेटेड। तो इन जनरल absolute value of R is in fact less than 1 होती है better fitted के लिए। इसका एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ना क्लियर हो चीजें, और इसको आप लोग बहुत सारे मेथड से, अगर आप फार्मूले के अलावा करना चाहते हैं तो आप लोग कोई लैंग्वेज यूज करें, या फिर आप लोग ग्राफिकली कोई भी ऐप यूज करें, ठीक है, जिस तरह हम डेस्मोस वगैरह करते रहते हैं। ये एरर वगैरह ये समझा रहा है, इसको आपने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सर आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट, और उसके बाद हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। इसका मैं इस तरह करता हूँ, एक एग्जांपल कर लेता हूँ तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरह होता है। सर पहले वाला पॉइंट क्लियर ही नहीं हुआ. वो भी क्लियर करता हूँ एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया है। लेट सपोज में कोई भी रेंडमली नंबर पुट करता हूँ 1 से, लेट सपोज 2 आता है, और 1 पर 2 आप लोग देखें कि एक इस पॉइंट आ गया स्केटर का। लेट सपोज में 3 से लेट सपोज 5 पुट करता हूँ, ठीक है, और 5 पर मैं पुट करता हूँ लेट सपोज 4, ठीक है, या मैं करता हूँ -1 पर एनी नंबर फॉर एग्जांपल 0 पुट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की, या मैं पुट करता हूँ 3 पुट करता हूँ, लेट सपोज। इस तरह 4 महीने पॉइंट लगाए स्केटर डायग्राम से रिलेटेड, या आप चाहें तो कोई और पॉइंट भी पुट कर सकते हैं। लेट सपोज 2 पुट करता हूँ और 2 पर मैं लिखता हूँ
4 करता हूँ, ठीक है। ओके, तो सर ये वॉइस थोड़ा बड़ा है। अच्छा, ये स्केटर डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। इज इट क्लियर? मतलब कितनी पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 पॉइंट है, और आप लोगों ने इसकी मॉडलिंग करनी है। तो हम लीनियर मॉडल करना चाहते हैं, तो हम ऐसी इक्वेशन बनाना चाहते हैं जो इन पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करे। अगर कम एग्जैक्ट ना करे तो कम एरर कम से कम हो, ठीक है। तो उसको हम करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू। यहाँ पर डेसिमल्स में किस तरह करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर y1, फॉर एग्जांपल y1 इज एप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट टू, और हमें क्योंकि लीनियर ऑर्डर चाहिए तो लीनियर का जनरल फॉर्म क्या है? mx1 प्लस, लेट सपोज मैं लिखता हूँ प्लस b कर लेता हूँ प्लस b। तो ये डेसिमल्स ऑटोमेटिकली आपको ना m की वैल्यू यानी कि स्लोप 0.6 और b की वैल्यू जो कि y-इंटरसेप्ट 2 आपको दे रहा है, यानी कि आपका जो मॉडल होगा वो होगा y इज एप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट टू 0.6x प्लस 2। और उसमें ये मैं आपको आर बताना चाह रहा था कि ये आर जो है ना, आर की वैल्यू क्या है? 0.8165 है। दिस इज कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कि ये जो मॉडल है इनफैक्ट वो तकरीबन 80% डेटा को रिफ्लेक्ट करता है। मींस दिस इज अगेन गुड फिटेड मॉडल। तो ये मॉडल को बेहतर रिप्रेजेंट करता है। और अगर इस आर की वैल्यू जो है ना वो 0 के करीब हो तो हम कहेंगे कि दैट विल बी नॉट गुड। यानी कि लेट सपोज अगर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं 14 कर लेता हूँ, तो देखिए आर की वैल्यू अब 0.025 0 के करीब आ रही है, तो मतलब इसमें ज्यादा एरर है, ठीक है। आप लोग देखें लाइन कहाँ जा रही है और ये नीचे पॉइंट। और अगर आप इसको चेंज करें, लेट सपोज मैं इसको 100 कर लेता हूँ, तो ये नेगेटिव रिलेशन आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो इस नेगेटिव और इसका स्लोप भी आप लोग नेगेटिव जाएगा। तो ये जो मॉडल है वो आप लोग इसी तरह डेसिमल्स से करेंगे, ठीक है। जो आपने मैन्युअली करना है अब हम उसी पर आते हैं, ठीक है। यानी कि इन अदर वर्ड्स आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो वेरिएशन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको आप लोग बाय हैंड करेंगे। जो ऊपर वाला मेथड मैंने बताया वो आप लोग ग्राफिकली यूटिलिटी से करेंगे, यानी आप लोग डेसिमल से करेंगे। सर आप आगे आगे पढ़ाई जा रहे हैं सर, समझ तो आ नहीं रही पीछे वाला सर ये play सर नहीं ये हुआ। आपने जो शुरू से समझाया है ना 1.10 समझ ही नहीं आया 1.10 को अभी हम समझ रहे हैं, ठीक है। सर। अभी तक तो क्या किया 1.10 तक क्लियर है ना, यानी कि 1.9 तक क्लियर है ना। Yes, sir. यस 1.9 तक सर, ये जो तो डायग्राम पर हमने किया ये और Yes, sir. 10 अभी हम समझ मॉडल्स को रहे हैं, अगेन ठीक है। थोड़ा रिपीट कर लें सर। ओके, मैं आप यहाँ पर रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जब वेरिएशन की बात करते हैं, ठीक है, सो वेरिएशन इज इन फैक्ट अगेन रिलेशन बिटवीन x एंड y। आपको पता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ इन जनरल वेरिएशन, बट उसके सम डिफरेंट काइंड्स हैं, उसी को भी हम डिस्कस करते हैं। बहरहाल मुझे बताएं, सबसे पहले हम डायरेक्ट वेरिएशन की हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने जो वेरिएशन से पहले हमने डिस्कस किया था लीनियर मॉडल को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये वाली इक्वेशन यूज की थी y इक्वल टू mx प्लस b। अगर आपके पास डेटा गिवन हो तो लीनियर रिग्रेशन के मदद से आप m और b की वैल्यू इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। मगर अभी हम बात करेंगे जब b 0 हो। अगर मैं b 0 पुट करूं तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू kx में। तो अब हम हमारा इनफैक्ट ये टॉपिक है y इक्वल टू kx, जिसको हम कहते हैं इनफैक्ट डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो लीनियर मॉडल में हम क्या कर रहे हैं डिस्कस, y इक्वल टू mx प्लस b में मैं b को 0 पुट करूँ, ठीक है। तो ये और आसान हो जाएगी, जिसको हम बाय हैंड से इजीली कर सकते हैं। m कर लूँ या इसका स्लोप में अब कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। So a direct relation or direct variation is same as y directly varies as x, means if you increase value of x then value of y will also increase, if you decrease value of x then value of y will also decrease, clear।
or in other words, this is same as y is directly proportional to x. So y is directly proportional is x is represented by this symbol, directly proportional to the x. And if we remove this symbol, then we have to write constant of proportionality that will equal to constant of proportionality, let's suppose denoted by kx. So this y equal to kx is same as y is directly proportional to x. Clear? This third point, y is equal to kx for any non-zero. So सर ये फर्स्ट वाले सेकंड वाले में क्या डिफरेंस है? this is directly first step, direct variation. Clear? So his first part is सर ये क्या clear. होता है? Sorry, डायरेक्ट वेरिएशन सर ये क्या होते हैं? यही तो मैंने आपको बताया, डायरेक्ट वेरिएशन मतलब जिसमें डायरेक्ट रिलेशन हो। आप लोग देखें, अगर मैं इस तरह स्कैटर डायग्राम बनाऊं तो इसमें बताओ x और y में क्या रिलेशन है? x बट एक दूसरे आप लोगों ने क्लास में भी बहुत सारे एग्जांपल किए थे डायरेक्ट वेरिएशन का। लेट्स सपोज व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इनकम एंड इनकम टैक्स एंड यूर इनकम। सो ये एग्जांपल 3 आपको बता रहा है कि क्या रिलेशन है टैक्स में और आपकी इनकम में। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगी, सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशन। और इसी तरह आप लोग बताएं क्या रिलेशन है सर रिलेशन का, कोई एग्जांपल बताएं। सर यस, मैं सुन रहा हूँ। सर क्लास किस टाइम खत्म होगी? आप लोगों को पता है टाइम टेबल नहीं है क्या आप लोगों को? सर हाँ है, उसके मुताबिक तो 2:30 बजे क्लास खत्म होगी। तो फिर ये पूछने वाली चीज़ थी। और सर इसलिए कि यहाँ पे लाइट नहीं है और मेरी बैटरी सर 3% है, तो मसला हो रहा है मुझे। तो बैटरी तो चार्ज करनी चाहिए थी तुम्हें, ये क्या मतलब बात है कि आप अभी बता रहे हैं? लाइट नहीं है यहाँ पे काफी टाइम से सर, काफी टाइम से यहाँ पे लाइट नहीं है सर। ठीक है, तुम चले जाना, मैं रिकॉर्डिंग पर जो ना अपलोड कर दूंगा। क्या करेंगे सर? रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा मैं। वो एब्सेंट तो नहीं लगेगी सर फिर? नहीं, एब्सेंट नहीं। ओ भाई पहले टाइम थोड़ा क्या टाइम कम है, लेट मी कंप्लीट। आप लोग दूसरा कोई एग्जांपल बताएं। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई, और व्हाट इज प्रॉफिट वर्सेस डिमांड। तो इस तरह की आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल किए थे क्लास में, वैसे ही आप लोग बता सकते हैं। या फिर एरिया वर्सेस रेडियस के दरमियान क्या रिलेशन है, या एरिया वर्सेस डायमीटर, या रेडियस वर्सेस डायमीटर क्या रिलेशन है। ये तमाम पॉजिटिव रिलेशंस के एग्जांपल हैं, ठीक है, या डायरेक्ट रिलेशन के एग्जांपल। मगर ये पर्टिकुलर केस था जिसमें पावर 1 था, तो हम अब जनरल करते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन इज nth पावर। तो nth चाहे जो भी हो, 1 हो या 2 हो या nth पावर हो या 1/, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? अगर मैं इस टेबल को आपने समझना है, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन इज nth पावर, सो दिस इज सेम एज दीज 3 पॉइंट्स। ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ y वेरीज डायरेक्टली इज द nth पावर ऑफ x, तो y वेरी करता है अब x के साथ नहीं बल्कि nth पावर ऑफ x के साथ। या फिर इन अदर वर्ड y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ x। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी x पावर 1 था, अब x पावर n होगा, ठीक है। और जैसे प्रोपोर्शनल की साइन खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा kx पावर n, ठीक है। सो दिस इज सेम थिंग, y इक्वल kx पावर n, या y डायरेक्टली वेरीज एज nth पावर ऑफ x। क्लियर? फॉर एग्जांपल आप लोग देखें, हमने इससे पहले एग्जांपल किया था, या फिर ये वाला एग्जांपल 4 देखें। The distance of ball rolled down inclined plane directly proportional to the square of time. तो टाइम के साथ स्क्वायर है, so d is in fact now d is directly proportional to the square of time is represented as d equal to kt square, ठीक है। तो ये सेम चीज है जो कि मैंने स्टेटमेंट यहाँ से पढ़ी।
So this statement is can be written as D equal to KT square. Clear? तो ये दोनों डायरेक्ट है, यानी कि ये जनरल है, वो अगर कोई पावर 1 दूं तो इसका पर्टिकुलर केस हो जाता है. तो सेकंड वेरिएशन इज नोन एज इनवर्सली वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन. ये वो क्या होता है? इनवर्स वेरिएशन. सो y वेरीज इनवर्सली x का मतलब ये है कि अगेन आपने इनवर्स फंक्शन पढ़ा था, तो अगर y इंक्रीज करेंगे देन you will get x is decrease, or if you decrease y then x will be increased. So there is inversely relation. This can be also known as y is inversely proportional to the x. This mathematically can also written as y is now not directly x but inverse. What is inverse of x? Inverse of x is 1 upon x. So y varies inverse of x. मतलब this statement can also be written as this. So जैसे ही आप लोग proportionality को हटाएंगे, you will have to give a constant number for proportional. Clear? So y equal to k over x is same thing as y is inversely proportional to x, or y varies inversely as x. So इसका ये जनरल इनवर्स का आप लोग बताएं कोई एग्जांपल. सर रजिस्टर एंड करंट. ये डिमांड और प्राइस का बता रहा है. जैसे जैसे आप लोग प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी. और आप बताएं क्या बता रहे थे, कोई और एग्जांपल? सर स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. सर प्रेशर एंड वॉल्यूम. यस, स्पीड और प्रेशर और वॉल्यूम में क्या डायरेक्ट रिलेशन होती है? सर वॉल्यूम और टेम्परेचर में भी डायरेक्ट होती है. सर रेजिस्टेंस एंड करंट. Resistance and current. So you will get so many inverse proportion. Also mainly we have two variation, direct and inverse, but sometimes we may combine variation or mix variation. So combine means if we have two variation, one is direct and other is indirect, that is known as combined variation. For example, this example 6 is telling a gas law states the volume of any gas is varies. Now this varies what? Inverse is the pressure. Clear? And directly is the temperature. तो जो गैस का वॉल्यूम है वो अब कंबाइंड वेरिएट कर रहा है. ठीक है, किसी के साथ इनवर्स है और किसी के साथ डायरेक्ट है. तो इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे, v equal to k t over p. This example of combined variation. Clear? Where you can easily see that volume and temperature are directly variate with each other, but volume and pressure are inversely related with each other. ठीक है, so this is a combined variation. मगर generally आपको वही दो चीजें मिलेंगी, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन. ठीक है, या फिर हम इसको ज्वाइंट वेरिएशन भी कहते हैं. ज्वाइंट में फिर ज्वाइंटली हमारे पास एक से ज्यादा रिलेशन हो किसी भी वेरिएबल में. लेट्स सपोज x y z को अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, ज्वाइंट वेरिएशन में, तो अगर मैं इस तरह लिखूं y और z में, एग्जांपल 6 फिर से. ओके, एग्जांपल से पहले आप इसको देखें. z वेरीज जॉइंटली एज x एंड y, और z is jointly proportional to the x and y. का मतलब z is now jointly variate or direct variate with x and y. So this can be written as k x y. So this example of joint variation. Example 6 को एक मरतबा देखते हैं क्या कहता है. इस एग्जाम्पल की बात करें ना. जी सर. इसको देखें, ये कहता है गैस लॉ स्टेट दैट, ये मैं जो अंडरलाइन करने जा रहा हूँ इसको अपने फोकस करना है. वॉल्यूम ऑफ एनी इनक्लोज गैस. सो इसकी वॉल्यूम के लिए मैंने v लिखा है, और v वेरीज इनवर्सली. तो वेरीज इनवर्सली के लिए मैं इस तरह लिखूंगा, और इनवर्सली है तो ये मैं 1/6 लिखूंगा इनवर्सली एज अ प्रेशर. तो प्रेशर के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? P. तो ये चीज जो है ना, यहाँ तक वॉल्यूम से लेकर प्रेशर तक हम इसको लिखेंगे v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. और आगे कहता है एंड
डायरेक्टली वेरीज एज अ टेम्परेचर, तो ये डायरेक्टली टेम्परेचर में मल्टीप्लाई करेंगे टी। सो अब जैसे ही प्रोपोर्शनल की साइन हम खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू के टी ओवर पी। इज इट क्लियर अप हियर? अच्छा, बाकी के और टी, सॉरी यहाँ पर जो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई ऑर्डर कर दे रहा है तो उसको आप लोग पुट करके ना के की वैल्यू इजीली कैलकुलेट करेंगे, मगर कॉन्सेप्चुअली स्टेटमेंट को ना एज अ वेरिएशन के तौर पर आपने समझना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर अप हियर? या इसको कंप्लीट करें? इसको कंप्लीट करने के सर लिए कंप्लीट करें। इसमें हमने एक तो ए पार्ट अभी हमने कर लिया, ए पे कहता है राइट इक्वेशन रिलेटिंग प्रेशर, ये हमने किया। बी में फिर आगे कहता है कि द प्रेशर ऑफ गैस इज 0.7 kg, मतलब P given है when the temperature T is also given 294, और इनका यूनिट सेम है, ठीक है, जो भी है, तो आप इसको यूनिट को अज्यूम करते हैं सेम है जो हम वेरिएशन इस फंक्शन में यूज करें, ठीक है। एंड वॉल्यूम इज 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये तीनों चीजें इस इक्वेशन में पुट करेंगे और के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मुझे बताएं V क्या है, T क्या है, P क्या है। क्योंकि एग्जाम्पल इसने किया हुआ है और टाइम हम बचा रहे हैं, तो इसमें V की जगह 8000, T की जगह 294, P की जगह 0.75 आ गया और K की वैल्यू इसने सॉल्व की तो K आ गया 1049। तो जैसे कि 1049 आ गया तो फाइनली आप लोगों के पास ये इक्वेशन आ गई, मतलब ये आपने मॉडल बना लिया दूसरे लफ्जों में, ठीक है। अब आप जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर पुट करते जाएंगे आपको वॉल्यूम मिलता जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप चाहें तो इस प्रेशर की इक्वेशन भी बना सकते हैं इसमें से, चाहें तो अगर आपको टेम्परेचर चाहिए उसकी इक्वेशन, और ये V के लिए तो ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। तो अच्छा, B में कहता है आइसोलेट P ऑन वन साइड इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग, अच्छा ये तो हम कर सकते हैं इजीली, या फिर आप कोई भी नंबर पुट करें तो कोई भी दो वैल्यू आपको गिवन है तो इजीली थर्ड की वैल्यू आप लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 1। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सर ये लास्ट वाले में सर थोड़ा मसला हो रहा है। लास्ट जॉइंट में इसमें, यस सर। ओके, जॉइंट Yes, एंड sir. कंबाइन बोथ आर सेम। कंबाइन में क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंबाइन कर रहे थे, मगर जॉइन में हमारे पास एक ही तरह की वेरिएशन, लेट सपोज डायरेक्ट वेरिएशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जब भी हम जॉइन की बात करेंगे तो हमें दोनों सेम वेरिएशन की बात करेगा, ठीक है। लेट सपोज Z varies jointly as X and Y is same thing as Z is jointly proportional to the X and Y. So Z is jointly proportional to the X and Y को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और जैसे ही प्रोपोर्शनल की साइन खत्म करेंगे तो आपको मिलेगा Z इक्वल टू K टाइम्स एक्स वाई, ये जॉइंट वेरिएशन का फार्मूला है। और एग्जांपल देखना चाहें तो ये एग्जांपल है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल। जॉइंटली प्रोपोर्शनल मतलब एक से ज्यादा की बात करेंगे तो इंटरेस्ट के लिए मैं आई यूज करता हूँ, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक से ज्यादा चीजों के लिए, क्योंकि ये जॉइंटली कह रहा है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्या है, जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एंड द प्रिंसिपल, तो दो से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। टाइम के लिए मैं टी लिखता हूँ और प्रिंसिपल के लिए मैं पी लिखता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे यू विल गेट आई इक्वल टू के पी टी, ठीक है। अब के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑर्डर पेयर गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल ये कहता है आफ्टर 1 क्वार्टर 3 मंथ्स, ये टी है आपके पास, द इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल 5000, ये पी है, और ये आपके पास आई है, ठीक है। तो इसको पुट करके आप इजीली वैल्यू आई के की पुट कर सकते हैं। यानी कि गिवन क्या है, गिवन है आई, जो इंटरेस्ट रेट है वो है 43.75, और टाइम कितना गिवन है। अच्छा, ये फार्मूला इन टर्म्स ऑफ ईयर है, तो 3 मंथ को अगर हम ईयर में करेंगे तो क्या होगा 3/12, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5000, ठीक है। तो जैसे इसमें तीनों पुट करेंगे आपको के की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, और जैसे ही के की वैल्यू मिल जाएगी तो उस पर आपका ये मॉडल मिल जाएगा। तो ये एग्जांपल इसने किया हुआ है। सो आई इज इक्वल टू
035 P T इस्तेमाल कर लें कैपिटल, दैट इज अप टू यू। ठीक है, तो ये आपका जॉइंट वेरिएट का या जॉइंट प्रोपोर्शनल का एग्जांपल है। सर यस, इसमें जो एक क्वांटिटी हम लेते हैं, जो दूसरे 2 या 3 या 4 क्वांटिटी से हम रिलेशन देखते हैं, तो वो सारों में डायरेक्टली होगा या इसमें इनवर्सली बात है जॉइंट? जॉइंट वो सारे डायरेक्ट हैं। ठीक है, अच्छा, और अगर इनडायरेक्ट हो गया तो वो कंबाइन में आ जाता है। यानी कि आपको नाम का नहीं भी पता ना, तो ये स्टेटमेंट में क्लियर होगा, आप स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि मतलब अगर इनवर्स होगा तो वो आपको बताएगा, अदरवाइज जॉइंट में तो आपको बताएगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो ओके इस एक्सरसाइज में आपको ना दो तरह की प्रॉब्लम होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो इस तरह स्केटर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इसका मॉडल के लिए आप लोग डेस्मोस को यूज करेंगे, डेस्मोस यूज करेंगे, यानी कि किस तरह इसकी इक्वेशन बनाई वो हमने बाय हैंड या किसी फार्मूले को नहीं देखा। आप लोग क्या करेंगे, लेट सपोज अगर आपसे ये क्वेश्चन कहा जाए कि इसकी इक्वेशन, अच्छा इस 9 में तो आपको पता है कि गिवन है। फॉर एग्जांपल दूसरा क्वेश्चन में देखता हूँ जिसमें आपको ना इक्वेशन के लिए कहा जाए, तो वो उसको कैसे करेंगे, वो आपने जस्ट क्या करना है, डेस्मोस को यूज करना है। ठीक है, और बाकी जितने भी वेरिएशन के वो आपने बाय हैंड करना है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल 17 है। ठीक है, ये 17 में ये डेटा गिवन है, ये सारी डेटा आप लोग टेबल के जरिए पुट करेंगे और फिर y1 एप्रोक्सीमेट mx1 प्लस b करेंगे, तो आपको नहीं डायरेक्ट डेस्मोस आपको इक्वेशन इसकी दे देगा। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन के लिए आप लोग रिग्रेशन फीचर्स को यूज करेंगे, मतलब चाहे तो कोई दूसरी लैंग्वेज यूज करेंगे, बहरहाल ये कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस। बाकी इसके अलावा बाय हैंड आप लोग करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम जितनी भी हैं, ठीक है, वो आप लोग बेस सकते हैं। इज इट क्लियर अप टू हियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए Yes, sir. ये बताएं इसको Sir. बाय, यस सर कंबाइंड वेरिएशन जो है सर, उसमें अगर y इंटरसेप्ट हम 0 ना लें सर, ऐसा कोई एग्जांपल बताएं। अच्छा, वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अब जब हम वेरिएशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो जनरल फॉर्म है उसमें क्या होता है, बी जीरो हो जाता है। ठीक है, मतलब लीनियर मॉडल को हमने दो कैटेगरी में तकसीम किया है। एक तो y इक्वल टू mx प्लस बी विथ बी नॉन जीरो किया था, और इसके लिए हमने रिग्रेशन या लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए इस इक्वेशन को सॉल्व किया, जिसमें उसके हमने फार्मूले को बाय हैंड कैलकुलेट नहीं किया बल्कि डेस्मोस से हमने इसको किया। ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल ये वाले क्वेश्चन है, इसमें बी भी आपको पता है कि नॉन जीरो, ये 1 से शुरू है तो बी नॉन जीरो। दूसरा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, y इक्वल टू mx विथ बी जीरो, तो ये y इक्वल mx जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है y इक्वल टू समथिंग के x में। ठीक है, अगर डायरेक्ट हो, या फिर ये हो जाता है y इक्वल टू के ओवर x अगर इनडायरेक्ट हो। ठीक है, तो हम जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये मॉडल होंगे। अगर b नॉन जीरो होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, रिग्रेशन लाइन पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल इसको देखें, इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, डायरेक्ट है ना, मगर b जो है यस ना, सर। b नॉन जीरो है, b बता सकते हैं क्या है, और इसमें अगेन इनडायरेक्ट है और b भी नॉन जीरो। ठीक है, और गेटिंग नॉट, तो मुझे बताएं कि इसमें कौन सा लीनियर मॉडल फिट हो रहा है स्केटर डायग्राम में, ए बी सी डी में से बताएं, ए के लिए, बी सी और डी के लिए बताएं। व्हाट अबाउट ए, यस और नो? is linear model is can be used for this scatter diagram?
तो ये पता कैसे चले ग्राफ के थ्रू के हमें जो ये वेरिएशन मिला नहीं हुआ सर, है? ये इनवर्स प्रोपोर्शन है सर, Inverse एक्स इंक्रीज proportional होगा और तो y स्ट्रेट लाइन आप लोग बना सकते हैं ना इस तरह, तो ये यस सर। बेस्ट फिटेड कर सकती है। वैसे ही इसमें भी आप लोग कहेंगे कि ये आवर लीनियर मॉडल कैन बी मॉडल और दैट कैन बी बेस्ट फिटेड फॉर दिस काइंड ऑफ डेटा, बट व्हाट अबाउट हेयर, बी को इमेजिन करें तो ये तो आपको पैराबोला नजर आ रहा है ना। अच्छा, देयर इज अ मॉडल बट दैट विल बी नॉट अ लीनियर मॉडल। हमने लीनियर मॉडल को डिस्कस करना है तो आपने कहना है नॉट मॉडल बट के नो linear model. There will be a quadratic model that can best fitted for this kind of data. Again, for what about C? C में भी आपको बताएं कि हमारे पास हम कहेंगे there is no linear relation, कोई और relation हो सकती है, मगर ये है कि इसमें B और D जो है ना वो linear model approximate इसको फॉलो कर सकता है या बना सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन से आई थिंक आप लोगों से हो जाने हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई मसला हो तो हमारी नेक्स्ट क्लास अभी के बाद होगी, ठीक है। और अगर आपको इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो आप दौरान इस वीक पूछ सकते हैं इंडिविजुअली। ग्रुप में तो आपका नंबर है ना मेरे पास, आप लोगों के पास मेरा नंबर है ना, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मगर प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर आवर चैप्टर 1. आफ्टर इट वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर 2. इज इट क्लियर अप हियर? Yes, sir. यस यस सर। सर। और कोई मसला? अगर सर मसला सर नहीं एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताएं। सर जो जॉइंट वेरिएशन है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है जॉइंट वेरिएशन? वो कंबाइंड प्रोपोर्शन कहलाती है। सर कंबाइन में तो एक वेरिएबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक इनवर्स होता है ना। नहीं नहीं, कंबाइन में तो कुछ भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, दोनों इनवर्स हो सकते दोनों इनवर्स और दोनों डायरेक्ट हो सकते हैं सर हैं। हाँ हो कंबाइन सकता है में? दोनों, हाँ हो सकते हैं इन जनरल, मगर जब दोनों डायरेक्ट होते हैं तो वो हमारी जॉइंट होती है। ओके सर, थैंक यू।